Hi guys, this is Ajit here from Interview Network. Welcome to your channel, and I hope you like this new way of talking thanks to AI. I'm just trying a little bit of different way of talking. And so guys, in this video, we will be discussing about more on the Azure VNet peering, and it's another series for AG700 which we are running. And if you haven't gone through my, Azure virtual machine video or Azure VNet versus subnet content, please go through that video first before you proceed to this video. Link in the description so that you can have a clear understanding what exactly we're talking about in this video. Now in this video, we'll be focusing more on from the Azure VNet peering point of view. So there's Azure, there's a VNet, and there's a peering. Okay, so you should have a clear understanding what Azure is, and then you should have a clear understanding what is VNet, and then only you can understand what exactly we're talking about. Now, as a network engineer, in terms of whether you are an operational engineer or a designer or implementer, VNet plays a very important role. And peering is another important role because there are a lot of stuff that you need to migrate from on-premises to cloud. And even though if you're creating virtual networks within the cloud, what you all important things that you need to take care. Though all those things that we are covering in this video. So guys, let's start this video now. And moreover, in case still now, if you haven't followed me and if you want to get in touch with me, you can follow me on Instagram, on Facebook, join my Telegram channel or WhatsApp channel, and you can directly communicate to me there, and I can help you as and when needed. So guys, let's start this video now, and I'm sure you're going to love and enjoy this content. And once again, do not forget to like and subscribe the channel. Thank you. So guys, in this video, we'll be learning about the VNet peering, and so normally there are two types of VNet peering that we have. One is regional peering and another is global peering. The mechanism and the process remain the same, and it's just that you should be aware about that when you have to connect VNet in the same region or you are connecting VNet between a different region. The process remain the same, mechanism remain the same, technique remain the same. You just need to understand, yes, we can do that. We can connect the regional VNet to the global VNet. Okay, so any resources that lying on in the regional VNet, if they wants to communicate anything outside the region, then yes, they can do that. How they do that, what process they have to follow, what role they are required. Let's start this part in this video. So let's start this video now. So now the first thing that I need to discuss about the VNet pairing in same region और subscription, यानी कि सेम रीजन के अंदर आपके जो भी वर्चुअल नेटवर्क हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, उनके बीच में जो रिसोर्सेस है, एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्स है वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट दैट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि आईपी एड्रेस स्पेस कैन नॉट ओवरलैप, यानी कि सेम आईपी एड्रेस आप अक्रॉस रीजन या क्रॉस विद इन द सेम वीनेट नहीं यूज कर सकते हो. वन आईपी एड्रेस असाइन टू वन रिसोर्स, दैट्स सिंपल. इट शुड नेवर बी ओवरलैप. ओके, नाउ ये पॉइंट क्लियर होने के बाद लेट्स टॉक अबाउट कि अब ये कम्युनिकेशन कैसे होगा. बाय डिफॉल्ट जो भी रिसोर्सेस एक वीनेट के अंदर है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप कम्युनिकेशन करते हैं. ओके, सो देयर इज नो नथिंग दैट यू हैव टू डू टू मेक एनी कम्युनिकेशन टेक प्लेस. कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप होगा फॉर ऑल द रिसोर्सेज दैट फॉल्स विद इन द सेम वीनेट. यानी एक वीनेट के अंदर अगर आपके 10 वर्चुअल मशीन है या 10 डिफरेंट सर्वर्स हैं और अगर आपको कम्युनिकेशन करानी है तो बाय डिफॉल्ट वो होगा. ओके, सो नाउ व्हाट्स टेक एन एग्जांपल जहां पे आपको एक से ज्यादा वर्चुअल नेटवर्क हो इन द सेम रीजन. ओके, अगर सेम रीजन में एक से ज्यादा वर्चुअल नेटवर्क है और वहां पे आपको कम्युनिकेशन करानी है तो वो कैसे होगा. लेट्स वॉच दिस दैट पार्ट नाउ. सो गाइज एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक ईस्ट रीजन है जिसके अंदर मेरे पास एक वीनेट 1 है, एक वीनेट 2 है. अब मैं यहाँ पे दोनों वीनेट के जो रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है दो वर्चुअल मशीन, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, सो बाय डिफॉल्ट communication between two VNet is always disabled. So by default, they cannot talk to each other. So दो different VNet सेम रीजन के हैं तो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट. यू हैव टू एनेबल द कम्युनिकेशन. ओके, सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम एनेबल कैसे करेंगे. Now to enable the communication between two different VNet that falls
इन द सेम रीजन, उसके लिए आपके एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपके पास जो एक रोल असाइन होता है, वो रोल होता है कंट्रीब्यूटर का। ओके, सो एज्योर कहता है कि यू शुड बी अ रोल ऑफ ए कंट्रीब्यूटर टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू वर्चुअल नेटवर्क। ओके, सो वीनेट वन के अंदर अगर मेरे पास 10 रिसोर्सेस हैं, वीनेट टू के अंदर भी मेरे पास 10 रिसोर्स हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 15, चाहे 1000 हैं, इनके बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करानी है, तो मुझे अगर पेयरिंग बनानी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे आई शुड हैव ए रोल ऑफ ए नेटवर्क कंट्रीब्यूटर। ओके, सेकंड थिंग, अब ये कम्युनिकेशन होगा कैसे? नॉर्मली अगर कोई कम्युनिकेशन हमें कराना होता है तो हम करते कैसे हैं? द मल्टीपल वेज दैट वी कैन एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन। हम यूज कर सकते हैं साइट टू साइट वीपीएन, हम यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस राउट। बट माइक्रोसॉफ्ट एक अनदर कॉन्सेप्ट के साथ आया, जिसने ये बोला कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्सप्रेस राउट और साइट टू साइट वीपीएन, बिकॉज दैट विल क्रिएट a burden on the bandwidth, in terms of bandwidth, in terms of latency, in terms of circuit capability, circuit response time, all those factors भी वो सारे इसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला कि क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये प्योरली प्राइवेट आईपी के बीच में होता है। ओके, सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वीनेट पेयरिंग के अंतर्गत, वो सारे सारे प्राइवेट आईपी के अंतर्गत होगा। देयर विल बी नो पब्लिक आईपी। ओके, सो अगर दो प्राइवेट आईपी के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है, तो हम क्यों किसी एक सर्किट का यूज करें अनलेस अनटिल हमें वो चीज रिक्वायर्ड ना हो। अगर हम मान लेते हैं 1 2 3 मिनट के अलावा आपके पास 10 मिनट्स है, या 50 मिनट्स है, या 100 मिनट्स है, अब उनको आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे विनेट 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर इनके बीच में हमें कम्युनिकेशन करानी है तो हम क्या करेंगे? इसका इससे पेयरिंग करना पड़ेगा, इससे इससे पेयरिंग करना पड़ेगा, इसका इससे पेयरिंग करना पड़ेगा, इसका इससे करना पड़ेगा, इसका इसका करना पड़ेगा, फिर इसका इसका करना पड़ेगा, इससे इससे करना पड़ेगा, फिर इसको। तो एज यू कैन सी इट्स बिकमिंग द क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड द फुल मेश। ये आपका पूरा फुल मेश हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ, अगर फुल मेश होगा तो फिर वही लॉट्स ऑफ कनेक्टिविटी, लॉट्स ऑफ रोल्स, और वो से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस चीज को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है हब एंड स्पोक का। Okay, so let's start about hub and spoke concept in VNet. So all the spoke sites and the hub site, these all falls under VNet. Okay, so ये सारे एक virtual network है. Spoke 1 is also VNet 1, Spoke 2 is VNet 2, Spoke 3 is a VNet 3, and one of the virtual network I consider as a hub. Okay, now अगर ये सारे के बीच में normally जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि अभी क्या होता है, normally if you have n number of VNet in your network, तो क्या होगा कि अगर सबके बीच में अगर कनेक्टिविटी करानी नहीं है तो फिर वो सारा एक फुल मैश बन जाता है। ठीक है, विच इज़ वेरी ट्रबलसम एंड ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू डू द मैपिंग ऑफ ईच or do the pairing of each spoke to the and those stuff. Okay, but here अब क्या होगा कि हम सारे हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हम सभी स्पोक को वन बाय वन हब से पेयर कर देंगे। ठीक है, स्पोक 1 विल पेयर टू हब, स्पोक 2 एंड देन स्पोक 3 इन द सेम वे। सो हर एक आपके हब को, हर एक स्पोक को हब से हमने पेयर कर दिया, यानी कि कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर दी। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या अगर हमने ये कर दिया तो क्या स्पोक 1 स्पोक 2 से अब बात कर सकता है? क्योंकि वो स्पोक 1 आपका हब पे आएगा, हब को पता है, और वो स्पोक 2 पे भेज सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। स्पोक 1 स्पोक 2 या स्पोक 1 स्पोक 3 से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता अभी भी। पर अगर हमें कराना है तो फायदा क्या हुआ इस चीज़ को करने का? हमने हब एंड स्पोक कर दिया, बिकॉज नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटिंग में तो ऐसा होता है कि हम एज पर कन्फिग्रेशन हम हब एंड स्पोक की कन्फिग्रेशन अगर चाहे तो फेज 1 के हिसाब से, फेज 2 के हिसाब से अपना, या फेज 3 के हिसाब से, जैसे भी आपकी कनेक्टिविटी आपने एस्टेब्लिश करनी है, आप स्पोक टू स्पोक कनेक्टिविटी करा सकते हो। बट रिमेंबर टर्म कि हमें कन्फिग्रेशन वहां पे करना होता है। सेम गोज टू Azure नाउ। यहाँ पे भी आपको वो कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा जहाँ पे एक स्पोक दूसरे स्पोक से कम्युनिकेट कर सके। सो टिल नाउ इसके अंदर वो फीचर नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके। बट अगर मुझे अब कम्युनिकेट कराना है तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि या तो आप Azure का फायरवॉल यूज करो। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक डिवाइस है, वो Azure का फायरवॉल है, या तो Azure का फायरवॉल हो, या तो वो एक NVO हो, नेटवर्क वर्चुअल एप्लायंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा ये एक डिवाइस है, विद इन हब ये एक मेरा डिवाइस है, या तो फायरवॉल है या तो एनवीए है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा यूडीआर।
दैट्स कॉल्ड द यूजर डिफाइंड राउटिंग। मैं यहाँ पे भी यूडीआर करूंगा और यहाँ पे भी यूडीआर करूंगा। ठीक है, तो जिन जिन स्पोक को दूसरे स्पोक से अगर बात करवानी है तो मुझे हर वो स्पोक का पे यूडीआर करना पड़ेगा, यानी यूजर डिफाइंड राउटिंग करना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जो नेक्स्ट हॉप है, यानी स्पोक वन को अगर कम्युनिकेट करना है स्पोक टू से, तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप जो है, अभी हब ना होकर के अभी तुम्हारा जो नेक्स्ट हॉप है वो ये डिवाइस है, चाहे वो फायरवॉल हो चाहे वो एनवीए हो। और इस फायरवॉल को या इस एनवीए को पता होगा कि नेक्स्ट हॉप मेरा अगर इस स्पोक से अगर आ रहा है मेरे लिए, तो मुझे कहाँ पे भेजना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं यूडीआर करूंगा। सो बाय दिस वे आप जो ट्रांजिटिव कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश अब तक नहीं हो पा रहा था, आप कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि आप हब एंड स्पोक का कॉन्सेप्ट कैसे करोगे। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर हम यहाँ पे हब को, यानी कि अगर ऑन प्रेमाइसेस डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना चाहें तो कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट कि हम ऑन प्रेमाइसेस डिवाइसेस को अब यहाँ पे अगर मुझे कम्युनिकेट कराना है विथ आवर वी नेट, तो वो कम्युनिकेट कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट नाउ। ओके, सो लेट्स कनेक्ट Okay, so let's connect now with your on-premises devices with the hub and spoke, as we discussed now. So, as we already discussed about this part where we will be connecting all the spoke sites with the hub. ठीक है, तो वो हमने already cover कर लिया है, because let me reconnect again. So ये मेरे सारे spoke जो हैं हमारे मेरे एक Azure Firewall से एक NVS से connected है। ठीक है, और उसके बाद इनकी यहाँ पे हमने UDR यूज़ किया, यूजर डिफाइंड राउटिंग। अब नाउ इसके जितने भी कम्युनिकेशन है बोथ एंड पे हमने यूडीआर यूज किया। अब जितने भी कम्युनिकेशन है बिटवीन स्पोक एंड हब विल बी ट्रांजिटिव। सो नॉन ट्रांजिटिव जो फीचर था जो कि अवेलेबल नहीं था, बिकॉज ये नॉन ट्रांजिटिव होता है Azure के कम्युनिकेशन बिटवीन द वीनेट, बट नाउ बिकॉज ऑफ यूडीआर हमने उसको अलाउ कर दिया। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हम ऑन प्रेमाइसेस को अगर कनेक्ट करना है, सो एज वी ऑल नो ऑन प्रेमाइसेस को कनेक्ट करने का विथ योर क्लाउड, विथ योर क्लाउड, टू मैकेनिज्म है। नंबर वन इज साइट टू साइट टनल एंड नंबर टू इज योर एक्सप्रेस राउट। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मेरा ऑन प्रीमाइसेस और इसके बीच में अगर मैंने ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, या तो मैंने साइट टू साइट वीपीएन यूज किया या तो मैंने एक्सप्रेस राउट यूज किया। ठीक, अब ये उससे होगा क्या कि हब साइट पे जो मतलब यहाँ पे मेरा एक कोई वीपीएन गेटवे है या एक्सप्रेस राउट है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अलाउ करूँगा गेटवे ट्रांजिट ऑन द हब साइट। और जो भी मेरे स्पोक साइट्स हैं उनको मैं अलाउ कर देता हूँ यूज रिमोट गेटवे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर मेरा कोई भी रिसोर्स अगर मेरा कोई भी रिसोर्स अगर यहाँ पर बैठा हुआ है और अगर वो ऑन प्रीमाइस के किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहता है डेटा सेंटर के अंदर, बिकॉज मैंने रिमोट पे स्पोक पे ऑन यूज रिमोट गेटवे को अलाउ कर रखा है फीचर को, तो ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, इट विल अलाउ द कम्युनिकेशन फ्रॉम this to this and from this to this and from this it will goes to the on-premise applications, and same path it will follow when it has to go back to the same user. Okay, तो ये एक one of the best way है जहाँ पे हम on premises devices को connect करते हैं on the virtual network. ठीक है, I hope this much be clear to you. I hope guys you must like this video, and if you have any query you can mention under the comment section. See you next soon in the next video. Thank you guys, take care, bye bye.